Hello everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to today's most important topic. In fact, it's not today's most important topic, it's this week's most important topic, right? जिसको हम प्यार से बुलाते हैं weekly MIT. So इस हफ्ते आपको पता ही है कि we have seen so many articles revolving around the AI Impact Summit जो हुआ था न्यू दिल्ली में. Now the summit took place from the 16th of February all the way to the 20th of February. So 5 days का ये summit था and ये 5 days में आपने देखा बहुत सारे news articles इस summit के बारे में थे and we decided that we are going to have all of these important articles in one such video and that's what I'm presenting you today. So here we are going to be studying about the AI Impact Summit. Now what are you going to expect in today's video? इस वीडियो में आप देखोगे कि हम डिस्कस करेंगे बेसिक से. सो इमेजिन दैट आई एम कंसिडरिंग यू एज अ न्यूबी, एज अ फ्रेशर हु डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक. तो पहले समझते हैं एआई के बारे में. ओके, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या है, ये सब हम देखेंगे. वी आर गोइंग टू देन सी विद रिगार्ड टू ये इम्पैक्ट समिट जो हुआ था, क्या इससे पहले कुछ समिट्स हुए थे एआई इम्पैक्ट से समिट से रिलेटेड, वो देखेंगे. We're also going to be seeing with regard to what were the outcomes of this summit and India के क्या initiatives हैं with regard to AI Impact Summit और AI Summit or with regard to AI, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे. So let's start with our topic, the AI Impact Summit. So firstly, let's understand artificial intelligence क्या है. Okay? और ये term कब आया था, who is the father of AI, ये सब हम देखेंगे. So artificial intelligence, to put in a simple terms, it is जब हम machines या computer systems को use करते हैं to perform tasks, okay, जो normally humans करते थे, जहाँ पे human की intelligence required थी. Let's put this in a simple example, okay, जैसे कि आप अगर मान लो कि आपको एक essay लिखना है, so usually you would have to write the essay by yourself. बट अगर आप AI से या कंप्यूटर सिस्टम में जो AI ऑपरेट करता है, या आप उनसे बोलोगे मुझे ऐसे लिख दीजिए ऑन एक्सीडेंट्स, ओके, और हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, तो वो AI खुद ये ऐसे लिखेगा आपके लिए इन द रिक्वायर्ड वर्ड्स. तो आपको कितने वर्ड्स का भी चाहिए वो भी आप बोल के यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन देगा. सो बेसिकली आप मशीन की इस्तेमाल से, कंप्यूटर सिस्टम के इस्तेमाल से आप उसको कोई भी टास्क दे सकते हो एंड दैट विल usually perform it in a most sophisticated, simple manner that earlier would require humans to do it. Okay. Further, it enables machines to think, learn, reason, and it also allows them to make certain decisions. Okay, जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हो और आपको कॉल करना है. Now you can't drive and you can give a call. But अगर आपने बोला कि hey Siri, do this for me, and she will do that, or give this person a call. अब मैं hey Siri नहीं बोलूंगी कि मेरा hey Siri will start operating. Okay, so here you see that आप इतने easily AI की मदद से अपने टास्क कर सकते हो. फर्दर AI जो है इट विल मिमिक द ह्यूमन कॉग्निटिव का मतलब है थिंकिंग एबिलिटीज, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैटर्न रिकग्निशन. सो गिविंग इट सो मेनी इमेजेस, यू ऑटोमेटिकली AI कैन एक्चुअली टेल what image, like अगर आपने cats and dogs की इमेज बताई है, उसको दे दी है, it is going to easily recognize कौन सा एक dog है, कौन सा एक cat है. And to put it even more in a complicated manner, अगर उनके पास सभी data है, like for example faces है, it can also recognize facial recognition भी पॉसिबल हो सकता है बिकॉज ऑफ AI. तो हम देखते हैं कि ओरिजिनल ये कॉन्सेप्ट कब आया, कैसे आया. सो फर्स्टली इट स्टार्टेड इन 1950s, जहां पे ट्यूरिंग टेस्ट, ओके, एलन ट्यूरिंग करके थे, तो उन्होंने टेस्ट किया कि मशीन्स के भी इंटेलिजेंस लेवल होता है, जिसको हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं. But the concept got a little more solid during 1956 in a conference called as the Dartmouth Conference. और इन्होंने जिसको ये कॉइन किया टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका नाम है जॉन मैकार्थी. ओके, सो here we see that यहाँ पे निर्माण हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट. And slowly we see that they started working on this.
पहली बार एक गेम बनाया, अ चेस प्लेइंग गेम, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस? इट वाज कॉल्ड एज द डीप ब्लू 1996 में, जहां पे लाइक यू हैव द कंप्यूटर प्लेइंग, सो कंप्यूटर आल्सो इज थिंकिंग लाइक अ पर्सन ओनली, राइट? तो यस, इन दिस केस आल्सो हम देखते हैं कि डीप ब्लू पहला ये गेम बनाया था जो है चेस। उसके अलावा we also see a lot of breakthroughs that happened in this particular field, जैसे image recognition और सब। and finally अभी हम देखते हैं to the world it is visible, it is present because of chat GPT, जो पहला हम देखते हैं 2022 में लॉन्च होता है। एंड यहाँ पे AI ये अलाउ करते हैं the use of AI to the masses, to the public in general, right? Apart from that we also see अभी बहुत सारी कंपनीज बने हैं AI से रिलेटेड आफ्टर 2022, स्पेशली अगर कोविड के बाद देखो, देयर हैज बीन अ बूस्ट टू AI नंबर ऑफ कंपनीज, एज वेल एज हम देखते हैं अलग अलग एग्जांपल्स हैं AI से रिलेटेड। अगर हम ग्रोक की बात करते हैं, अगर हम विद रिगार्ड टू एंथ्रोपिक की बात करते हैं, सो देयर सो मेनी कंपनीज हु आर डूइंग वेरी वेल इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इसके यूजेस क्या हैं, तो आप AI कहां कहां पे यूज कर सकते हो। सो हियर वी अंडरस्टैंड इट कैन बी यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। अगर आपको डिटेक्ट करना है, मान लो कि कोई ट्यूमर्स डिटेक्ट करना है, सो ये AI की मदद से हम इजीली एक्यूरेटली यहाँ पे पता चल सकता है कि ये ट्यूमर क्या है, कहां पे लोकेटेड है, बाय गिविंग द रिपोर्ट्स टू द AI एंड आस्किंग इट टू प्रोसेस इट। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम इसकी मदद सर्जरीज में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज अ रोबोट इन अ सर्जरी। नाउ रोबोट में जो वर्किंग कैपेसिटी है, दैट इट मेनली यूटिलाइजेस अगेन द डेटा दैट इट हैज टू परफॉर्म द सर्जरी मोस्ट प्रिसाइसली, बहुत एग्जैक्टली। तो यहाँ पे रोबोट्स भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ AI। Virtual assistants is we already discussed about, Alexa है, Siri है, where you can ask them to do certain tasks for you, maybe dimming the lights या switching off your geyser, ये भी ये कर सकता है when it is integrated. Further हम देखते हैं self driving cars. This is another example, a great example, जहाँ पे आप AI की मदद करके you can have the car drive yourself. Okay, it's a self driving car, so you just have to sit back and relax, और आपको कार जो है खुद पहुंचाएंगी विदाउट अ ड्राइवर, विदाउट हैविंग समबडी टेकिंग द व्हील। सो अगेन उसके पास प्रॉपर डेटा है, इट हैज प्रॉपर सेंसर्स इन प्लेस ताकि वो ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करता है, उसके पास सभी ड्राइविंग डिसीजंस और सब है, एंड इट डज द टास्क व्हिच यूजुअली अ ह्यूमन शुड हैव डन इट फॉर यू। इसके अलावा वी हैव ई-कॉमर्स recommendations. For example, when we suddenly speak about something, है ना, and maybe I'm discussing about say a particular say PS, okay, PS5 के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। अब देखोगे कि कुछ टाइम के बाद मुझे एड्स आएंगे PS5 के बारे में, राइट? दैट यूजुअली हैपेंस आल्सो। सो यहाँ इवन द थिंग विद रिगार्ड टू Amazon एंड विद रिगार्ड टू योर सर्चेस, जब भी आप एक बार भी सर्च करते हो, यू ऑटोमेटिकली गेट रील्स एंड गेट आइडियाज एंड रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन योर लास्ट सर्चेस। तो इट इज बेसिकली गिविंग यू what you require, and it understands, the machine understands what your requirement is by the data or the searches that it gets. इसके अलावा हम देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी इसका यूज है, बिकॉज जब भी आपको एक फ्रॉड कॉल आता है, ऑटोमेटिकली यू गेट अ मैसेज सेइंग दैट दिस इज अ स्पैम कॉल, या विद रिगार्ड टू मेनी टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनीज, राइट, ऐसे करते हैं कि ये फ्रॉड है, ये कॉल आ रहा है जो है फर्जी है, यू ऑटोमेटिकली नो विच विल सेव यू फ्रॉम spending lakhs of rupees because of a fraud. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे AI हमको मदद कर सकता है to live a very comfortable life, right? But of course उसके कोई challenges भी होंगे. It does not have to be all rosy. It does not have to be all good. So क्या है challenges, ये अभी हम जल्दी से देखेंगे. But before that, let's understand the components of AI. What makes AI? तो आपके तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है: मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। स्टार्टिंग विद मशीन लर्निंग, सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज मशीन लर्निंग। ना इसमें क्या है, अगर AI को आपको समझाना है, सिखाना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा। ठीक है, डेटा इज मस्ट, ठीक है, तभी वो सीख के, खुद को सीख के वो आपको रिजल्ट देगा, राइट? सो इट मेनली लर्न्स फ्रॉम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा,
एंड वो इसीलिए अपना परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करेगा ओवर टाइम. सो एज आई सेड, गिविंग द AI different pictures of dogs, different pictures of cats, it automatically then understands what is a dog and what is a cat. ठीक है. So therefore we see machine learning जो है ये एक core component है. उसके अलावा we have neural networks and it's to connect the dots. Okay, तो यहाँ पे एक neural network है with regard to computer systems जो inspired है हमारे brain structure. Okay, how a human brain works, how a human brain structure works. So यहाँ पे हम देखते हैं it will also help them to recognize, जैसे image है, sound है, voices हैं. It helps the AI to also learn and understand about different speeches, recognize patterns, recognize the face. ये भी इसको allow करता है by the help of the second component. The third component that we talk about is the natural language processing. इसके थ्रू वो क्या करता है, इट विल हेल्प द मशीन, जो भी हमारा सिस्टम है ये अंडरस्टैंड और रिस्पॉन्ड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसको समझेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा और उसको वापस से आपको रिप्लाई करेगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा. सो दैट इज द थर्ड एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. जैसे हम चैट बॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक वी से अलेक्सा और सीरी, जहां पे आप पूछ सकते हो उसको एंड उसको अंडरस्टैंड करेगा. लाइक एग्जांपल, यू से प्ले मी अ सॉन्ग. सो इन दैट केस व्हाट विल इट डू, इट विल टेक योर इंस्ट्रक्शन, इट विल अंडरस्टैंड इट, ओके, एंड देन इट विल गिव यू अ रिप्लाई कि दिस इज योर सॉन्ग एंड इट विल प्ले इट फॉर यू एंड इट विल एग्जीक्यूट द वर्क. तो ये आपका है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड कैसे ये काम करेगा, द यूज ऑफ AI. सो फर्स्टली एज यू सेड, ये इनपुट लेगा डेटा, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद इट विल गिव यू एन आउटपुट. ओके, लाइक वी टुक एन एग्जांपल कि प्ले मी अ सॉन्ग. नाउ समटाइम्स यू टेल देम दैट आई डोंट वांट दिस सॉन्ग, ओके, आई वांट सम अदर सॉन्ग. ठीक है, तो ये फीडबैक लेगा कि इसको ये सॉन्ग पसंद नहीं है and it will then store that in the memory, so next time it will not play you that same song. Okay, so इसीलिए feedback is also important to understand what the requirement is of the person. तो ये है mainly how AI usually works, and now we're going to see the positives and negatives. अभी तक तो आप positives जान चुके हो कि AI जो है of course ये humans का जो भी intervention है ये कम करेगा, है ना. इंटरवेंशन कम होगा तो एरर भी कम होंगे. यहाँ पे यू मे नॉट हैव ह्यूमन एरर्स बिकॉज यहाँ पे यू हैव मे बी से रोबोट काम कर रहा है. तो अगर रोबोट, अगर इफ आई एम टेलिंग हिम टू क्लीन द हाउस, इट इज गोइंग टू बी मोर स्विफ्ट क्लीन, राइट. घर थोड़ा और भी सुंदर बनेगा बिकॉज ही इज गोइंग टू इंश्योर कि एवरीथिंग इज पिक एंड स्पैन, राइट. ह्यूमन एरर हो सकता है, या अगर हम देखें रोबोटिक अगर सर्जरी में है, प्रिसाइसली वो काम करेगा विदाउट एनी ह्यूमन एरर, कि इंसानों से भी गलती हो सकती है. बट दिस इज मेनली बिकॉज इट हैज डेटा, इट विल वर्क ऑन दैट. फर्दर अवेलेबल है, एनी टाइम यू वांट इट यू हैव इट, राइट. इट वर्क्स कंटिन्यूसली, इट्स नॉट लाइक अ ह्यूमन जो थक जाएगा. सो एनी टाइम यू टेल ओके आई वांट द हाउस क्लीन, दैट कैन बी डन. इसके अलावा इट कैन हैंडल टास्क रेपिटेटिवली, बार बार बोलेगी बार बार करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट फास्ट डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ मशीन, ओके. एंड इट कैन ऑल्सो परफॉर्म डेंजरस टास्क. तो अगर आपको मेनली क्लीन करना है एंड से स्यूएज क्लीनिंग, राइट, ह्यूमंस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज डेडली हो सकता है, ड्राउनिंग हो सकते हैं, जो गैसेस होते हैं हानिकारक है. बट अगर हम मशीन या रोबोट्स को करें, जो हो रहा है केरला में, then it is again easier because your no life is lost and the work is getting done as well. Now coming to understand the disadvantages. Okay, disadvantage ये है कि इस काम से you will find that नौकरियां जा सकती है humans की. For example, I may not hire a driver now because I know that my car can drive itself, right? और for example, I know that मुझे वीडियो एडिटिंग अगर, या मुझे एक विजुअल करना है, ओके, मुझे एक इमेज करना है, now probably I won't hire like a video editor or a graphic designer because I can get that done from the AI, है ना. तो यहाँ पे नौकरियां जा सकती है. or I will not keep like a house help because I have a robot that can clean my house, so I don't need to give somebody payment, है ना. तो ये जो है it can also lead to displacement of jobs. इसके अलावा कॉस्ट भी ज्यादा है. इट्स नॉट इजी टू गेट अ रोबोट, बिल्ड अ रोबोट, गेट अ रोबोट एंड ड्राइव मी अराउंड. तो यस, इसका कॉस्ट ज्यादा है. Further, it will lack creativity and emotions because it's just giving data after studying so much of data, है ना. ये आपको बस वही रिप्लाई दे रहा है जो वो डेटा स्टडी करने की. यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस और सब मिसिंग है. Further, there's also a
fear of ethical issue or biasness. Okay, now यहाँ पे तुमने जो उसको डेटा दिया है उसी डेटा से वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेलिंग ओनली गुड थिंग्स अबाउट से अ स्पेसिफिक पर्सन, तो वो सिर्फ आप उसको सिर्फ नॉलेज पता है उसके गुड थिंग्स के बारे में या कोई कंट्री के बारे में, राइट. बट अगर मैं उसको पूछूं कि मुझे सच सच बताओ, टेल मी बैड थिंग्स, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट इंफॉर्मेशन, राइट. बिकॉज यहाँ पे बायसनेस है, बिकॉज जिसका डेटा उसको फीड किया गया है बस उसको वही पता है. So there could be a biasness that can come, and that you also see when you ask something to ChatGPT, say about a country. It will not say bad about that country, right? Because it will say that I'm not supposed to do that, or it is unethical, right? Apart from that, security risk in a case कि यहाँ पे भी it's data, right? Ultimately it's a computer system जो hack हो सकता है. So that is an issue further. Again, you're depending on technology, right? So again, it will rely less on your human skill. जहाँ पे आप खुद ऐसे लिख सकते थे, आपने किसी और को बोला है, एक मशीन को बोला है. So इसमें आप too dependent हो. Even if you to reply to somebody, you'll probably message them and say like, okay, is this a good reply? और write me a letter to my boss. तो आप यहाँ पे दिमाग नहीं लगा रहे हो, आप पूरा रिलाई कर रहे हो टेक्नोलॉजी पे. सो यहाँ पे आपका जो जजमेंट है ये नहीं होता है. you're giving your judgment, you're giving your powers to the AI to do that work for you. So all of these are the positives and negatives of AI. And with that, let us now proceed to the topic for today. That's the AI Impact Summit. Now coming to understand, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि न्यू दिल्ली में हो गया है इनफैक्ट February 16 से लेके 20 तक. एंड ये होस्ट कहाँ पे हुआ है? भारत मंडपम. दिस इज अ प्लेस इन दिल्ली जहां पे G20 भी समिट हुआ था. इट्स द फर्स्ट समिट जो है जहां पे ग्लोबल साउथ कोई कंट्री यहाँ पे होस्ट कर रही है. यानी कि इसके पहले जो भी समिट्स हुए हैं, इट वाज मेनली बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. ये पहला डेवलपिंग कंट्री है जहां पे ये समिट हुआ था. फर्दर इससे इंडिया कुछ एम्स करना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल रिकमेंडेशंस देना एआई से रिलेटेड. वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अ बाइंडिंग लॉ, ठीक है. प्रोबेबली इन द नेक्स्ट समिट वी आर गोइंग टू बी डूइंग दैट. एंड हम कैसे एआई को बूस्ट कर सकते हैं, एआई इनोवेशन को फर्दर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं. Let's now proceed to understand with regard to which have been the latest AI summits. तो पहले हम देखते हैं AI फर्स्ट समिट जो हुआ था AI से रिलेटेड, called as the AI Safety Summit 2023, and that happened in Bletchley Park, UK. ठीक है, it happened in Bletchley Park. Now यहाँ पे the focus of this particular summit was with regard to AI risk. ठीक है, to know the AI risk, क्या AI क्या कर सकती है, रिस्क क्या होते हैं, and उसके सेफ्टी मॉडल से रिलेटेड. So they also signed Bletchley Declaration, and they also led to the creation of AI Safety Institute. So the first summit is with regard to safety. Second summit is with regard to AI Seoul Summit. तो Seoul is the place जहां पे हुआ था. Seoul is in South Korea, and यहाँ पे it talked about safety but with innovation, inclusion, ठीक है. एंड ऑल्सो इन्होंने कहा कि खुद वॉलंटरी मतलब सभी अपने अपने सेफ्टी एक कमिटमेंट्स करेंगे. यहाँ पे कुछ बाइंडिंग नहीं था. ओके, सो दे सेड मेक योर ओन नेसेसरी कमिटमेंट्स, मेजर्स, ताकि एआई सेफ भी हो लेकिन इंक्लूसिव और इनोवेटिव भी हो. The second summit that happened in 2025, which was co-hosted by India and France, ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस, फ्रांस में, जिसको हम कहते हैं AI Action Summit. Now this particular summit was moved from the safety aspect to action aspect. ठीक है, from safety to action. And यहाँ पे the focus was on the interest in AI, public interest in AI, future of AI, ठीक है, as well as sustainable कितना होगा with regard to AI. Because we know कि ये जो हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. Now we have a lot of data that we give in the main system, ठीक है, main system of ChatGPT. of course हम देखते हैं कि बहुत सारा डेटा उसको कलेक्ट करना होता है. Now with regard to this infrastructure, जब भी वो इतना डेटा प्रोसेस करता है, मशीन जो है बहुत गर्म हो जाती है. जैसे अगर आपके कोई फोन यूज करते हो या कंप्यूटर यूज करते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो चालू ही रहता है बिकॉज टेक्नोलॉजी दैट वी वांट राउंड द क्लॉक, है ना. तो यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, हमेशा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो गर्म होता है, कंप्यूटर्स गर्म होते हैं. सो अगर हम उसको गर्म, रिमेंबर यू हैव लॉट ऑफ डेटा नाउ. सो इमेजिन इतना ज्यादा डेटा प्रोसेस करने के लिए, जल्दी से आपको डेटा देने के लिए, you require that कितना गर्म हो सकता है ये सिस्टम.
सो अगेन टू इंश्योर कि ये सिस्टम अच्छे से काम करे, विदाउट हैंगिंग काम करे और प्रॉपरली ऑपरेट करे, इट टेक्स गैलन्स ऑफ वाटर, इट टेक्स सो मच अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, टू कीप इट इन चेक, टू कीप इट कूलर. इसीलिए हम देखते हैं कि क्या AI सस्टेनेबल है फॉर द एनवायरनमेंट, बिकॉज हम कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. आपने एक रिप्लाई मांगने के लिए कि ऐसे मुझे बताओ एक्सीडेंट से रिलेटेड, है ना. सो दैट इज वेयर वी सी कि क्या कितना ही सस्टेनेबल हो सकता है फ्यूचर के लिए, क्या ये हेल्प कर सकता है. ऑल दैट ऑल्सो वॉज चेक्ड इन द AI एक्शन समिट. नाउ कमिंग टू द फोर्थ समिट जो हैपेंड इंडिया में हुआ था, AI इम्पैक्ट समिट. यहाँ पे इट मार्क द शिफ्ट फ्रॉम द फियर ड्रिवन नरेटिव्स कि AI गंदा है, टू how AI can help our problems, okay, with regard to the people, with regard to planet and progress. So ये हमारा इस बार का थीम था 3 P's, people, planet, progress, okay, और कैसे ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा AI के इस्तेमाल से. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव AI इम्पैक्ट समिट 2027, यानी नेक्स्ट 2 years कहाँ पे होगा ये भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. 27 वाला समिट होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और 28 समिट होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. जो अगले साल यानी 27 में जो समिट होगा, याद रखना, here they are going to focus on having an international AI law, because अभी तक हमारे पास एक सिंगल सेंट्रल AI लॉ नहीं है. ओके, लाइक वी हैव सीज के लिए अलग लॉ है ना, वैसे AI के लिए कोई लॉ नहीं है. सो प्रोबेबली वी गोइंग टू हैव दैट. Now coming to understand this summit a little more detail के साथ, तो पहले हम याद रखते हैं कि what is the theme of AI. Okay, we also saw it was 3 P's. Okay, that's people, planet, progress. ठीक है, people, planet, progress, जिसको हम कहते हैं 3 सूत्रास या 3 pillars. Okay, now people, जहां पे हम AI की मदद से what are we going to do? We are going to develop AI that empowers citizens. यानी AI का हम अलग अलग यूज करेंगे in regard to healthcare, in regard to education, with regard to jobs बनाना. This is what we are going to be using in for AI. Second is planet. Okay, we are going to check कि AI जो है ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस या क्लाइमेट रेजिलियंस एंड रिसोर्स एफिशिएंसी के लिए भी काम करेगा, यानी एनवायरनमेंट को यहाँ पे हेल्प करने के लिए ये इस्तेमाल होगा. बट यू नो द सैड पार्ट इज हम AI बनाने के लिए भी एनवायरनमेंट को हम हार्म करते हैं. सो दैट इज लाइक द विशियस साइकिल जो हम कह सकते हैं. इसके अलावा प्रोग्रेस की बात करें, अगेन वी आर गोइंग टू यूज AI for the overall growth of the country, okay, economic growth, governance, public safety, etc. Now, इस बार का मोटो क्या है? इस साल मोटो है इस थीम का ये सर्वजन हितया सर्वजन सुखाया. ठीक है, दैट इज वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल. तो ये आपको बाय हार्ट रखना है. You need to know this by heart. What is the motto? What are the 3 sutras, the 3 pillars or the theme? इसके अलावा we also have 7 chakras. Okay, so 7 chakra भी है. Now 7 chakra is again in which sectors की बात हो रही है यहाँ पे. So AI जो है कौन से areas में हम इसका इस्तेमाल करेंगे. So here it is talking about human capital. I'm going to read these for you if you're not visible. It's not visible. Human capital, resilience, innovation and efficiency में use करेंगे. Democratizing AI resources, मतलब सबको ये available होगा AI. AI for economic development and social good. Okay, further AI in science, AI for safe and trusted AI. ठीक है, safe and trusted AI. And finally for social empowerment, inclusion for social empowerment. तो ऐसे 7 chakras. Now again, do you have to remember the 7 chakras? Yes, because questions have been asked and have been asked in ALET. I think 2026 में ऐसे question पूछा गया था. So again, you need to know about these 7 chakras. You need to know them by heart. Is that fine? Okay, now coming to understand किसने participate किया था इस particular summit में, तो आप देख सकते हैं कि 100 से ज्यादा countries participate की थी. 15 to 20 presidents and prime ministers भी आए थे, अलग अलग ministries आए थी, as well as हम देखते हैं बहुत सारे कंपनीज AI के CEOs आए थे. ओके, बड़े बड़े कंपनी के CEOs आए थे, उनके हेड्स आए थे. सो अगर हम देखें एग्जाम्पल्स की तरह, we have Sundar Pichai from Google, Sam Altman, OpenAI, Demis Hassabis, DeepMind, Dario Amodei, Anthropic से, and Brad Smith, Microsoft. Okay, so now do you have to remember
the heads of the organizations? I would say yes, because these are the upcoming technologies and most of them are doing very well in the news. तो आपको ये उनके हेड, उनके CEO जो है, इनके नाम पता होने चाहिए. Okay. Apart from that, what is India focusing to do to democratize AI resources? Biasness नहीं होना चाहिए and to assess compute model algorithm applications. तो आप AI की मदद, AI का use करके you are looking at innovative growth, you're looking at economic growth, you're talking about stability and to reduce biasness. इसके अलावा हम देखते हैं what is the theme? The theme is with regard to AI and the impact on jobs, trust safety protocols, AI in sectorial industries, environment sustainability and global governance and regulatory alignment. Okay, तो यहाँ पे अलग अलग themes के ऊपर यहाँ पे meetings हुए थे, panels decide किए गए थे, बातचीत हो रही थी, conference हुए थे. So under those themes that they started getting in touch with the other countries. Now coming to understand what is the core outcome. Okay, outcome क्या था AI summit का? So one of the core outcomes, one of them was the New Delhi Frontier AI Commitment. ठीक है, न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई कमिटमेंट. रिमेंबर दिस. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? ये जो है इट इज अ की आउटकम ऑफ द समिट एंड इट इज मेनली अ वॉलंटरी फ्रेमवर्क. मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बाइंडिंग है कि यही करना है. नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट वॉलंटरी फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट. यहाँ पे हम प्रमोट कर रहे हैं क्या? कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन इनोवेटिव्स and global frontier AI firms. So what are we aiming to do? We are planning to collaborate between firms and between Indian innovators, okay, global and Indian operators. So हम क्या करना चाहते हैं? Domestically हम इसको boost करना चाहते हैं. Domestic जो industries है, इसको भी AI में हम integrate करना चाहते हैं. Apart from that, balancing innovation with accountability and with regard to public interest. तो इसमें दो pillars बताई थी New Delhi Frontier AI commitment में. दो pillars कौन से हैं? एक है to understand real world AI usage और जो सेकेंड पिलर है इज विद रिगार्ड टू मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्चुअल इवैल्यूएशन. सो द फर्स्ट पिलर टॉक्स अबाउट व्हाट, कि हम जो भी एआई का है वो उसको रियल वर्ल्ड में कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे. सो उसको अंडरस्टैंड, उसके रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा. दैट इज द फर्स्ट पिलर. द सेकेंड थिंग इज टू यूज इट with regard to conversational aspects. Okay, तो diverse language support. जैसे India is a land of diversity, बहुत सारी languages हैं, तो यहाँ पे we are going to be using in the multilingual aspect of it. जहाँ पे जो under represented languages हैं, यहाँ पे हम उनको बढ़ावा देंगे, उनको इंक्लूड करेंगे, सो दैट वी सी दैट जो लैंग्वेज है इसको बूस्ट मिले. ओके, बिकॉज दैट इज वन सच यू कैन से core point of India, right? Because we have number of languages. So यहाँ पे second is multilingual evaluations के लिए इस्तेमाल करेंगे. So firstly, how we're going to see it in the real world, इसका applications and risk क्या होगा, and second thing हमारे languages के लिए इसका second pillar है multilingual evaluation. ठीक है? So it will support multiple diverse languages. Now let us understand what is the vision of this particular समिट. इसका विजन क्या था? विजन या फ्रेमवर्क. विजन को हम कहते हैं मानव फ्रेमवर्क. नाउ मानव स्टैंड्स फॉर, M stands for moral ethical system, A stands for accountable governance, N stands for national sovereignty, और A stands for accessible and inclusive, and V stands for valid and legitimate. Again, do I have to remember these words? I will say yes, you do, because it is the vision of the summit. ठीक है? तो let's understand moral and ethical system में you want that the AI जो है it must be ethical. So इसीलिए जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिजिटल इकोसिस्टम. इट गिव्स अ लीवे फॉर दैट एज वेल, है ना. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो रूटेड सिस्टम है वो एथिकल होना चाहिए. हमारा जो एआई का बेस है एथिकल होना चाहिए. इनफैक्ट इंडिया रिसेंटली गॉट द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड for the maximum amount of pledges, okay, AI accountability से related, like कि AI responsibly हम use करेंगे. तो ऐसे बहुत लोगों ने pledge किया था 24 hours में. So it was about 2,50,000 plus ऐसे उन्होंने pledge किया है कि हम AI responsibly use करेंगे. So that shows about कि हम कितना commit कर रहे हैं ethical behavior of AI also. Apart from that, accountable governance. Accountable governance का मतलब यहाँ पे हम देखते हैं
to have transparent rules and strong oversight mechanisms. जैसे we have guidelines, AI guidelines आए थे 2025 में, right? So we're looking at having accountable governance, proper laws in place. जैसे IT Act है, IT rules हैं, so that we don't misuse with the help of AI हम misuse ना करें, इसलिए proper laws and rules होने चाहिए. इसके अलावा national sovereignty, okay, that means किसका डेटा है उसका राइट, डेटा सोवरेनिटी. सो डेटा ओनरशिप जो है वो उसी के पास होगा जो जनरेट करेगा. दैट इज एन एस्पेक्ट. इसके अलावा वी हैव एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव. सो यहाँ पे हम देखते हैं एआई शुड नॉट बिकम अ मोनोपोली बट इट मस्ट एक्ट एज अ मल्टीप्लायर फॉर सोसाइटी. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि हमको ensure करना चाहिए that the smaller sections also get, like with regard to vulnerable sections या जो least developing countries हैं उनको भी benefits मिलना चाहिए of AI. It is not only for the rich countries or the rich companies who get the benefit. Okay, तो ये multiply सभी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए. Further, valid and legitimate. तो AI applications जो हमारे हैं they should be lawful, they should be verifiable, they should be trustworthy. तो यहाँ पे हम examples देखने होंगे जैसे कि इंडिया AI मिशन है ना, we have like पैक्सिलिका है. So AI से related हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं या मिशंस है या प्लेटफॉर्म्स है. तो वो सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये वैलिड होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए और ये सेफ भी होना चाहिए जब हम कोई यूज करते हैं. द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू बी सीइंग इज विद रिगार्ड टू 3 सॉवरेन मॉडल्स जो इंडिया ने अनवील किया है इन दिस पर्टिकुलर समिट. पहला जो मॉडल है इट्स कॉल्ड एज अ सर्वम एआई. ओके, सर्वम एआई की अगर हम बात करें, ये जो मॉडल है ओके इन्होंने इंट्रोड्यूस, ये जो है यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यू कैन से लॉन्च किए हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स? नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर, आप जब एआई की बात करते हो, एआई का वर्किंग जो है इट इज बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेजेस या लार्ज डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, है ना. तो ये डेटा को प्रोसेस करता है, स्टडी करता है, अंडरस्टैंड करता है एंड देन इट गिव्स यू द डेटा. तो यहाँ पे सर्वम एआई ने यहाँ पे 2 ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अनवील किए हैं एंड दैट विल बी एंटायरली इन इंडिया. द सेकंड वन दैट यू हैव इज द ज्ञानी एआई. ओके, यहाँ पे इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉइस मॉडल. ओके, जैसे कि आपने कुछ पूछा एंड ऑटोमेटिकली उसने रिप्लाई किया. सो दिस अगेन विद रिगार्ड टू टेक्स्ट या वॉइस कमांड पे ऊपर चलता है, जहां पे आप 12 लैंग्वेजेस में उसको पूछ सकते हो एंड इवन इफ इट्स इन द लो बैंडविड्थ रीजन. सो दैट अगेन इज अ वेरी गुड मॉडल, अगेन एंटायरली बेस्ड इन इंडिया. तो दूसरा वाला है ज्ञानी. एंड द थर्ड वन भारत जेन, जो आई थिंक आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, भारत जेन. तो ये भी एक मॉडल था दैट वाज अगेन एआई मॉडल जनरेटेड बाय इंडिया एंड दिस टाइम अनवील 17 बिलियन पैरामीटर मल्टीलिंगुअल फाउंडेशनल मॉडल. तो आप देख सकते हो कितना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करते हैं ओके विद रिगार्ड टू द टूल्स ऑफ एआई दैट वी टॉक अबाउट एंड दिस इज गोइंग टू बी सो मच ऑप्टिमाइज्ड फॉर इंडियन लैंग्वेज, यानी इंडियन लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल होगा with regard to having an entirely based ecosystem, AI ecosystem in India. तो ये हमने देखा द सॉवरेन एआई मॉडल जो इंडिया ने अनवील किया, ये इंडिजीनियसली क्रिएट होगा, यानी इंडिया ने लॉन्च किया है. दिस इज नॉट एनी फॉरेन इनोवेशन दैट वी टॉक अबाउट. दैट इज व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स अंडरस्टैंड इंडिया का इंडिया एआई मिशन, जो एआई से रिलेटेड इंडिया ने क्या किया है. सो फर्स्ट यू हैव दिस इज लॉन्च इन मार्च 2024. ठीक है, 2 साल हुए हैं इसके लिए. इसका पूरा बजट है 10,000 करोड़, 10,371 crore. The vision for this mission is making AI in India and making AI work for India. Okay, so you need to remember these key facts. इससे हम एक ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं AI से रिलेटेड और ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडिया AI, जो एक बिजनेस डिविजन है of the Ministry of Electronics and Information Technology. A quick question for you. Who is the current Minister of Electronics and Information Technology? Use the comment section and answer. इसके अलावा we talking about the 7 pillars that are given in the India AI mission. तो यहाँ पे हम we talking about India AI compute. We're talking about India AI application development, India AI foundational models, जैसे हमने भारत जेन की बात की, AI startup financing, AI compute, then we have AI कोश, AI फ्यूचर स्किल्स एंड स्टार्टअप. तो हर सेक्टर में जैसे कि हम स्टार्टअप्स कैसे
उसको हेल्प करेंगे, या अगर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कैसे इसको हेल्प करेंगे, या अगर हम देखें जीपीयूज जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, again you need to process large amount of data, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो, so all of that again requires good working graphic processing units. तो यहाँ पे हम हाई एंड ऐसे ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स इंडिया में डेवलप करेंगे. ओके, वी टॉकिंग अबाउट कैसे हम फाइनेंसिंग, स्टार्टअप फाइनेंसिंग को प्रमोट करेंगे. सो ऑल ऑफ दीज आर द मेजर पिलर्स ऑफ द इंडिया एआई मिशन. इनके अलावा जो इस बार लॉन्च किया है युवा एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव, ये जो है अगेन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया एआई के अंदर है. जैसे मैंने कहा स्किल्स देना, एआई से रिलेटेड स्किल्स बनाना, तो युवा एआई फॉर ऑल जो है स्किल्स स्पेसिफिक है. ओके, सो व्हाट इज द एम, ताकि सिटीजन्स को एआई स्किल्स मिले. ओके, सिटीजन्स को एआई स्किल्स देना. सो यहाँ पे इट इज अ फ्री कोर्स, इट्स नॉट अ पेड कोर्स, फ्री कोर्स है, सबके लिए ये अवेलेबल है, और ये इंट्रोड्यूस कर रहा है एआई टू द यूथ, स्पेशली टू द यूथ. ओके, टू इंडियंस, स्पेशली टू द यूथ. एंड ये कोर्स डिजाइन किया है ताकि स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स ये सब कंफर्टेबल हो विद रिगार्ड टू एआई. तो एआई का जब हमने एक चैलेंज देखा था ना कि एआई जॉब्स खा रहा है, तो इसको यहाँ पे मदद करेगा बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय टीचिंग अबाउट एआई. ये 100% फ्री है, ओपन टू ऑल है, एंड सिंपल, प्रैक्टिकल, फिल्ड विद रियल लाइफ एग्जांपल्स होगा, ताकि आप इसको रिलेट कर पाओगे, आपको इसको समझोगे. ठीक है, सो अगर मेरी क्लास आपको अच्छे से समझी नहीं, यू कैन ऑल्सो गो टू युवा एआई एंड आप उससे मोर नॉलेज ऑन एआई के लिए देख सकते हो. फर्दर, भाषिनी. भाषिनी फुल फॉर्म है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया. Okay, now this is an AI powered language translation platform and it is developed by the Ministry of Electronics and Information Technology. This is under its National Language Translation Mission. तो यहाँ पे आपको क्या होगा, you have in a single platform, मान लो कि आपको इंग्लिश में ही यूजुअली गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स और सब बता रही है, बट इमेजिन इफ यू हैव अ प्लेटफॉर्म दैट गिव्स यू द डेटा ऑफ वेरियस स्कीम्स बट इन योर ओन लैंग्वेज, राइट. तो मान लो कि कितना हेल्प करेगा, कितना बेनिफिशियल होगा फार्मर्स के लिए जो चाहते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट क्रॉप्स, ओके, या टू अंडरस्टैंड अबाउट स्कीम्स, टू अंडरस्टैंड अबाउट वेलफेयर बेनिफिट्स. कितना हेल्प करेगा अगर उनको ऑलरेडी पता है कि उनके लैंग्वेज में उनको ये बता रहे हैं हम, रादर देन यूजिंग जस्ट हिंदी और इंग्लिश, right. So this is Bhashini, which helps them to again use different languages, Indian languages का इस्तेमाल करके to give data. Okay, it will help people translate the content into other languages. तो ये AI की मदद से हम content translate कर रहे हैं दूसरे languages में. So we are interfacing languages mainly for India. इसको भाषा interface for India कहते हैं. And this is under again Ministry of Electronics and Information Technology. Further ये implement किया जाएगा by the Digital India भाषिनी division, जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, which is coming under a section 8 company of the MeitY. कितने लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा? 22 हमारे तो लैंग्वेजेस हैं ही, इंडियन लैंग्वेजेस, उससे भी ज्यादा कोई छोटे लैंग्वेजेस हैं उसको भी ये ऐड करेगा. सो अब जो लैंग्वेजेस की बात करें उसको हम इंक्लूसिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक द सेकंड पिलर दैट वी टॉक्ड अबाउट द न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई कमिटमेंट. उसके अलावा वी हैव द वॉइस एरा. अभी हमने देखा कि कंटेंट हमको मिल रहा है. नाउ इफ आई वांट टू टॉक, आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन, राइट. अगर मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं सिरी या एआई अलेक्सा से पूछती हूँ, तो वैसे ही वी विल हैव अ वॉइस एआई स्टैक. ओके, दिस इज गोइंग टू बी देयर इन द भाषा, जो प्लेटफॉर्म हमने देखा था भाषिनी जो प्लेटफॉर्म है, उसमें ही आपको यहाँ पे वॉइस एरा भी मिलेगा. तो अगर आप टाइप नहीं करना चाहते, आप मुंह से पूछना चाहते हो, इन दैट केस दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, कॉल्ड एज द वॉइस एरा. ठीक है. सो इट इज डिजाइन टू ओपन, प्लगेबल, इंटरऑपरेबल, मतलब ये दूसरे सिस्टम्स को भी इंटीग्रेट कर सकता है. ओके, यू कैन टेक इट आउट एंड यू कैन ऐड इट इनटू सम अदर सिस्टम्स आल्सो, अदर एप्स में भी ये ऐड हो सकता है. तो दैट इज कॉल्ड द वॉइस एरा. दिस प्लेटफॉर्म जो आपको सिक्योर स्केलेबल डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉइस सिस्टम, या इट विल हेल्प यू अगेन योर गवर्नमेंट रिसर्च, अलग अलग इकोसिस्टम्स में भी ये इस्तेमाल होगा. सो इट इज अ मल्टीलिंगुअल वॉइस एंड लैंग्वेज एआई. आसानी से आप वॉइस का सिस्टम ऐड कर रहे हो इन द भाषिनी प्लेटफॉर्म, ताकि आप अगेन कन्वर्स कर सकते हो विद द नेसेसरी, यू नो, यू कैन से विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन. नाउ coming to understand the next one, which is the AI कोश. ये इनिशिएटिव है अगेन मेटी का. So all of these initiatives as you see are from the Ministry of Electronics and Information Technology, and ये डिजाइन किया है to serve as a unified repository for data sets, tools and AI models. What does that mean? Think about it कि अगर मान लो आपको एक रोबोट बनाना है,
ठीक है, आपको एक रोबो बनाना है और ये रोबो को आपको अगर बनाना है, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू टेक इन अ लॉट ऑफ डेटा, राइट, यू आपको डेटा उसको फीड करना है, आपको फिर टेस्टिंग भी करना है ना, कि ये चल भी रहा है बिफोर यू टेक इट टू द रियल वर्ल्ड। इफ यू टेक इट आउटसाइड या स्कूल में लेके जाने से पहले यू वांट टू टेस्ट इट आल्सो। तो इन दिस केस यू रिक्वायर डेटा, यू रिक्वायर डिफरेंट टूल्स, जो कुछ रेडीमेड टूल्स भी आप यूज करना चाहते हो और आप उसको टेस्ट भी करना चाहते हो बिफोर यू यूटिलाइज इट। सो थिंक अबाउट लाइक आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर का भी ऐसा ही केस है, you again want to give it a lot of data, you want to take up some ready-made tools that are already available outside to make it better, and you want to test before you use it outside or before you take it to the company। तुमको खुद चेक करना कि ये फुल प्रूफ है कि नहीं। तो ऐसा ही दिस इज कॉल्ड एज द AI कोश। तो थिंक ऑफ इट लाइक अ लाइब्रेरी, ठीक है, जहां पे आप टेस्टिंग भी कर रहे हो, ओके, लाइक अ लेबोरेटरी जहां पे टेस्टिंग भी कर रहे हो, चेक भी कर रहे हो कि सही चल रहा है, एंड देन यू आर टेकिंग इट टू द रियल वर्ल्ड। सो दिस इज लाइक अ यूनिफाइड रिपोजिटरी, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां पे आप ये सब टेस्ट और सब कर सकते हो। सो दिस इज टू एक्सेस, आप डेटा सेट्स भी मिलेगा आपको फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ताकि आप इनोवेशन आपका बूस्ट हो, एंड सपोर्टिंग इन AI डेवलपमेंट विद शेयर्ड टूल किट्स। तो आपको कुछ अगर यूज करना है ऑटोमेटिकली जो अवेलेबल है मार्केट में, वो भी आप यूज कर सकते हो शेयर्ड टूल किट से, एंड आप शोकेस यूज केसेस टू इंस्पायर अगेन न्यू एप्लीकेशंस आप कुछ बना सकते हो। तो ये रिपोजिटरी में कितना क्या क्या मिलेगा, यू हैव 300 plus data sets, you have 80 different models and you have a diverse AI use case, okay, so that is how आप देख भी सकते हो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स कैसे काम कर रहे हैं। एंड सैंडबॉक्स का मतलब है टेस्टिंग एनवायरनमेंट टू टेस्ट योर ओन सिस्टम। तो इसको हम क्या कहते हैं, AI कोश कहते हैं। फर्दर हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी लॉन्च किया है, सो हमने इस हफ्ते देखा था सही एंड बोध, ओके, सो सही एंड बोध जो है, सही का फुल फॉर्म है सिक्योरिंग AI फॉर हेल्थ इनिशिएटिव एंड बोध इज बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI। ये रिसेंटली लॉन्च किया था बाय द हेल्थ मिनिस्टर जो है JP नड्डा। दोनों का मीनिंग क्या है, सही की बात करें सिक्योर AI फॉर हेल्थ इनिशिएटिव, ये हम देखते हैं इट्स अ फ्रेमवर्क, इट्स अ गाइडलाइन, ठीक है, इट्स अ गवर्नेंस फ्रेमवर्क, पॉलिसी बताता है कि हाउ वी शुड यूज AI इन हेल्थ केयर, ठीक है। सो दिस इज मेनली कि क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस होने चाहिए अगर आप हॉस्पिटल्स में यूज कर रहे हो AI। तो ये फ्रेमवर्क देता है सही, ठीक है, क्या सही है। उसके अलावा वी हैव बोध। बोध इज बिफोर आप इंटीग्रेट करो AI टू अ हॉस्पिटल, आपको चेक करना है ना कि ये फुल प्रूफ है, ये सही चल रहा है, नहीं तो ऐसे ही आपने यूज किया, दैट शुड नॉट बी द केस ना। सो दैट इज व्हाई यू हैव बोध। बोध इज लाइक अ गवर्नमेंट अकेडमी या कोलैबोरेशन से डेवलप हुआ प्लेटफॉर्म जहां पे ये टेस्ट करेगा अलग अलग AI सॉल्यूशंस बिफोर इट इज यूजिंग इन अ लार्ज स्केल एनवायरनमेंट, बिफोर वो हॉस्पिटल्स में जाए। सो दैट इज कॉल्ड एज द बोध विच इज अ प्लेटफॉर्म। इज दैट क्लियर? इसके अलावा वी हैव इंडियन आर्मी ने भी लॉन्च किया है अलग अलग इनिशिएटिव्स जो इस हफ्ते हमने देखे, सो जल्दी से इसको रिवाइज भी करते हैं। फर्स्ट इज एकेडमिक एंड एजुकेशन में, उसको हमने एक AI टूल कहा है AI एग्जामिनर। तो टेस्टिंग के लिए, एजुकेशन, रिपोर्टिंग के लिए ये काम करेगा, ओके, विद रिगार्ड टू AI इन एजुकेशन सिस्टम, ओके, ट्रेनिंग सिस्टम। इसके अलावा वी हैव सामन। सामन इज फॉर सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मिशन प्लानिंग, ओके, सो जैसे कि कोई मिशन प्लान कर रहे हैं, डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान कर रहे हैं, सो कैसे हम बेस्ट तरीके से काम करें, अगेन यू विल हैव अ स्पेसिफिक AI टूल कॉल्ड एज द सामन, ठीक है, फॉर AI बेस्ड अवेयरनेस सिस्टम। इसके अलावा वी हैव एकम। एकम जो है, नाउ वी नो दैट AI इन आर्मी अगर हम यूज करें, इट शुड बी लाइक फुल प्रूफ, यहाँ पे हैक नहीं हो सकता, डेटा हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो इन दैट केस जो आपका जो डेटा है बहुत सिक्योर होना चाहिए, है ना। यू शुड इंश्योर दैट एन इंफ्रास्ट्रक्चर सच अ वे कि आपका बहुत सेफ्टी भी हाई है, हैक भी ना हो, तो उसको हम कहते हैं एकम सिस्टम, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा AI क्लाउड प्लेटफॉर्म, ताकि डेटा जो है प्रोटेक्टेड हो, सॉवरेन हो। नेक्स्ट वन इज प्रेक्षपण। प्रक्षपण जो है, इट इज फॉर डिजास्टर रिलेटेड हेल्प, ओके, तो डिजास्टर प्रिडिक्ट करने के लिए या क्लाइमेट इंटेलिजेंस के लिए AI, अगेन AI विल बी यूज्ड, ओके, AI इट विल प्रोवाइड अर्ली अलर्ट्स कि अगर उनको पता है विद रिगार्ड टू सर्टेन केसेस, इट विल गिव यू एन इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड सो दैट यू कैन वर्क एंड यू कैन एक्ट ऑन इट अप्रोप्रिएटली, ठीक है।
further we have some more initiatives like the X phase. X phase is आइडेंटिफाई करने के लिए पर्सन्स. ओके, सो अगर आपको टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करना है, देन अगेन दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड एज एन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन. एआई की मदद से हम इसको वेरीफाई करेंगे. वी हैव अ फोटो एंड इट विल यू कैन आस्क द एआई कि आर दे द सेम पीपल. ओके, इज द सेम टेररिस्ट, क्योंकि उसने प्रॉब्ली कुछ चेंज किया है, यू नो, दाढ़ी बढ़ाई है. सो यू कैन अगेन नो इफ यू आर ट्रैकिंग ऑन द सेम पर्सन एक्स फेस की मदद से. डीप फेक, नाउ यू हैव अ वीडियो एंड यू डोंट नो कि ये सही है कि गलत है या यू नो ये फर्जी है. तो अगेन टू चेक आप ये वीडियो डाल सकते हो एआई को और पूछ सकते हो कि क्या ये मैनिपुलेटेड वीडियो है. ओके, सो ये क्या डिटेक्ट कर सकती है ये. दैट अगेन विल हेल्प इन स्टॉपिंग यू नो राइट्स एंड ऑल ऑफ दैट एज वेल. इसके अलावा एआई साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, ताकि आपका जो सिस्टम है वो हैक ना हो, कोई वायरस ना आए, कोई मैलवेयर ना आए. All of this again with regard to a proper cyber secure systems. Then we have Nabdrishti. This is to get like a whole visualization, real time monitoring करने के लिए of the situation. You have the Nabdrishti, जहाँ पे पूरा एक dashboard create होगा with regard to the current happenings. इसके अलावा we have the driver fatigue system. तो जब भी ड्राइवर को नींद आती है, automatically वो बीप बजेगा, तो you know that you know that the driver is tired and you need to change the driver, and so ताकि accidents ना हो. So that is again the driver fatigue detection system. All in a box, AI in a box to ensure कि quickly हमको AI system अगर remote दूर इलाके में चाहिए तो again AI in a box for remote regions. And AI powered vehicle tracking, अगर हमको ट्रैक करना है व्हीकल्स को जो हमारे प्रोबेबली इंपॉर्टेंट कोई सामान कैरी कर रहा है, लॉजिस्टिक्स कैरी कर रहा है, तो उनके लिए अगेन टू ट्रैक इट इज मच इजियर विद द हेल्प ऑफ एआई. इसके अलावा वी हैव एग्रीकल्चर में कैसे हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगेन इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन द एआई समिट भारत विस्तार. सो ऑल ऑफ दीज इनिशिएटिव्स जो है ये इस बार समिट में डिस्क्लोज हुए. दैट इज व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट. एक्सेप्ट फॉर इंडिया एआई मिशन की बात करें हम, वो मैंने बताया था 2024 में लॉन्च हुआ था, बट ऑल ऑफ दीज आर द वंस दैट आर न्यू, दैट आर मेनली लॉन्च. भारत विस्तार वाज फर्स्टली टोल्ड इन द यूनियन बजट ऑफ 26-27 और इस बार अभी उन्होंने लॉन्च किया है. एंड व्हाट डज दैट डू? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज. यहाँ पे हम एआई की मदद से फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं. एआई की मदद से फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं. सो हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर? सो वी गोइंग टू हैव लाइक जो भी फार्मर को नेसेसरी है. नाउ फार्मर यूटिलाइजेस अ नंबर ऑफ स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे पीएम किसान है, वी हैव द सॉइल हेल्थ कार्ड्स, है ना. तो ऐसे 10 से ज्यादा ऐसे स्कीम्स है. तो ये पूरा स्कीम्स एक ही जगह आपको मिलेगा एंड फार्मर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट दीज स्कीम्स इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, जिसको हम कहेंगे भारत विस्तार. ठीक है. सो दिस इज 24/7 डिजिटल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट. अगर वो पूछना चाहता है, ओके, सो मुंह से पूछना चाहता है कि मुझे बताओ कि कौन सा क्रॉप उगाना चाहिए मुझे इस महीने में, सो अगेन इट इज गोइंग टू टेल यू, एआई की मदद से इज गोइंग टू टेल यू. नाउ दिस चैटबॉट इज कॉल्ड एज भारती. ये जो वॉइस असिस्टेंट है जो आपको कम्युनिकेट कर रही है लाइक सिरी, शी इज कॉल्ड एज भारती. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इनके अलग अलग फीचर्स की बात करें, it is initially in Hindi and English, but later ये दूसरे languages में भी होगा. So again it is going to be integrated with भाषिनी, right, जो अलग अलग languages के लिए है. और weather, pest controls, ये सब के लिए भी आपको ये help करेगा. कब मुझे crops डालना है, कब मुझे use करना है, कौन से weather में कौन सा system करना चाहिए. All of that is going to be telling you with the help of this. So here we are done with the summit. We have discussed about the AI summit. We have discussed about कि अगला summit कब होगा. We have also discussed जो भी schemes इस summit में launch हुए थे, पूरा मैंने discuss किया. I have done a longer video only so that we are able to cover everything in this particular video. Thank you so much for watching.